Welcome to Visionary Classes. Here we are with the lecture number 7 on the part B, that is from the EVS part. Okay, so I would like to request you to subscribe our channel and contact us for the latest study material on this number. So in this question we will discuss for the part B, that is the EVS section. Okay, so the question given, identify the massive volcanic eruptions of the Cretaceous to Eocene times from the western India. Okay, so the options are Panjal Trap, Sicily Trap, Deccan Trap and Nidar volcanics. Okay, so these are the volcanic outcrops. Okay, so let us discuss the first one. The Panjal traps have been associated with the mid Captanian and end Permian, that is 251 million to 260 million, okay, annum. Okay, so that is the mass extinction events, okay, at that time. But our question is given Cretaceous to Eocene, so this will not be the answer. The Panjal trap will not be the answer. Okay, now moving on to the Sittel trap. Okay, the Sylhet traps in the southern part of the Khasi Hills is not present in the western part of the India. So this will also not be the answer. Okay, there as is although in the lower Cretaceous, but this will not be answer because it is present in the Khasi Hills. Okay, while the Deccan traps will be the answer because Deccan traps began forming in 66.25 million years ago at the end of the Cretaceous Eocene period. Okay, the bulk of the volcanic eruptions occurred at the Western Ghats are around 66 million years ago. That's why this is the answer. Okay, because it started in the Cretaceous to Eocene period as well as in the Western Ghat part. While the Nidar volcanics is found in the Ladakh region, so it will not be the answer. Okay, the answer will be Deccan Trap. Next question tells that how does air circulate around a surface of high pressure in the southern hemisphere? Okay, this is the question. Okay, so let us discuss the concept behind this question. Okay, so as we know, the Coriolis force caused by the Earth's rotation is what gives wind within high pressure system their clockwise circulation in the northern hemisphere, as the wind moves outward in this place and is deflected right from the center of the high pressure. While in the counterclockwise circulation in the southern hemisphere, as the wind moves outward and is deflected left from the center of high pressure, that's why this is a counterclockwise सर्कुलेशन. ओके, सो क्या हो रहा है आप देख सकते हैं इस फिगर के थ्रू से. ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहां भी हाई प्रेशर की बात करती है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में हाई प्रेशर की बात की तो हम हाई प्रेशर की बात करते हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा जब बाहर की तरफ निकलती है तो वहां पे आप रोटेशन देख सकते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्योंकि वहां पे कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट की वजह से सब हवा राइट हैंड डायरेक्शन में टर्न आउट होते हैं. तो हाई प्रेशर जोन में राइट हैंड डायरेक्शन में वो टर्न होता है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में अगर बात करें ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट, वो जो होता है मूवमेंट उसका ऑल्दो राइट डायरेक्शन में होता है, लेकिन वो आपका कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से जो भी हवा बाहर की तरफ मूव कर रही है वो आपकी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आई मीन कि लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में वो टर्न कर जाती है. ठीक है, तो इस वजह से आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड डायरेक्शन में टर्न होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में टर्न हो जाता है. तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज होगा. ठीक है, एयर प्रेशर इन दी सदर्न हेमिस्फीयर की बात की थी तो सदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर पार्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवा मूव कर रही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of aerosol is causing heat? This is the question, which type of aerosol is causing heat? So let us discuss कि किस तरीके के एरोसोल से हमारी हीटिंग प्रोसेस होती है. ठीक है, तो एज ऑप्शंस आर देयर वी शुड डिस्कस अबाउट दोज ऑप्शंस. ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन वी कैन डिस्कस अबाउट दैट इज द ब्लैक कार्बन एरोसोल. ठीक है, ब्लैक कार्बन एरोसोल को सूट भी बोला जाता है और ये एक डोमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग पार्टिकुलेट मैटर होता है जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद है. ब्लैक कार्बन इज इमिटेड बाय इनकम्प्लीट कंबशन. ये एक इनकम्प्लीट कंबशन
होता है जिसकी जो कि बोथ ह्यूमन बेस्ड जो कि डीजल फॉर्म से या नेचुरल वाइल्ड फायर से दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, ब्लैक कार्बन जो है वो वार्मिंग को इंपैक्ट करता है क्लाइमेट में, जो कि नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड से 460 से 1500 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड के वार्मिंग से। सो व्हेन सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर ब्लैक कार्बन कंट्रीब्यूट्स टू वार्मिंग बाय कन्वर्टिंग द इनकमिंग सोलर रेडिएशन टू हीट। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन कुछ भी आ रहा हो तो इसको ये हीट में कन्वर्ट कर देता है ब्लैक कार्बन, और जिसकी वजह से उसकी हीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और हमारी ग्लोबल वार्मिंग फिनोमेना दिखती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्लाउड के फॉर्मेशन एज वेल एज आपका रीजनल सर्कुलेशन और रेनफॉल पैटर्न्स में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप अगर बात करें एरोसोल जो यहाँ पे सल्फेट रिच हो तो वो मेनली स्कैटर करता है सोलर रेडिएशंस को, और जो कि आपका ग्लोबल कूलिंग इफेक्ट में काम आता है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि सल्फेट एरोसोल जो होते हैं वो ग्लोबल कूलिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर सल्फेट रिच एरोसोल की बात करें तो वो आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि आपके क्वेश्चन में हीटिंग की बात की गई है। ब्लैक कार्बन पुअर एरोसोल भी नहीं होने वाला है, तो ब्लैक कार्बन रिच एरोसोल ही आपकी आंसर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्कैटरिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम द क्लाउड। ओके, सो आप एक एक करके सारे स्कैटरिंग की बात करते हैं, तो अगर हम जान लें तो इसका आंसर मिया स्कैटरिंग होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो रेलिंग स्कैटरिंग होता है मेनली कंसिस्ट ऑफ स्कैटरिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक गैसेस। रेलिंग स्कैटरिंग जो होता है वो गैसेस में हमारा मेनली दिखता है। दिस occurs when the particle causing the scattering are smaller in size than the wavelength। ठीक है, अगर हम बात करें किसी भी लाइट की तो वो एक वेव के फॉर्म में से ट्रेवल करता है। अगर आपकी पार्टिकल की साइज ये आपकी वेवलेंथ होती है, एक प्रॉपर क्रेस्ट से लेके एक दूसरे क्रेस्ट तक का जो लेंथ होता है आपको उसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो एक प्रॉपर वेवलेंथ से अगर छोटा है हमारा पार्टिकल का साइज तो उस जगह पे हम रेलिक स्कैटरिंग देखते हैं। ठीक है, तो रेलिंग स्कैटरिंग नहीं होगा, क्योंकि आपकी यहाँ पे क्लाउड की बात की गई है, तो क्लाउड्स के टाइम में क्या होता है कि मिया स्कैटरिंग दिखता है। जो मिया स्कैटरिंग होता है ये कॉज्ड बाय पोलन ग्रेन्स हो सकता है, डस्ट हो सकता है, स्मोक हो सकता है, वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकता है, एंड अदर पार्टिकल्स इन द लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर से भी हो सकता है। ठीक है, इट ऑकर्स व्हेन पार्टिकल्स कॉजिंग द स्कैटरिंग आर लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन कांटेक्ट विद देम। ठीक है, तो क्लाउड्स के पार्टिकल होते हैं वो काफी ग्रो कर चुके होते हैं और उनकी वेवलेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है आपके नॉर्मल जो लाइट की वेवलेंथ होती है उससे, इस वजह से वहां पे मिया स्कैटरिंग दिखता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मिया स्कैटरिंग से इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वाइट अपीयरेंस ऑफ द क्लाउड। तो मिया स्कैटरिंग की वजह से आपको जो अपीयरेंस ऑफ क्लाउड व्हाइटिश होता है वो उस वजह से दिखता है। तो आपकी स्कैटरिंग मिया स्कैटरिंग होगी फॉर द क्लाउड। ओके, अब बात करते हैं रमन स्कैटरिंग की। तो रमन स्कैटरिंग मेनली होता है फोटॉन्स के मैटर में। ठीक है, जहां पे फोटोन की एक्सचेंज होती है एनर्जी की और एक चेंज होता है लाइट के डायरेक्शन में, वहां पे आप रमन स्कैटरिंग की बात करती है। तो हमारा आंसर जो होगा दैट विल बी मिया स्कैटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, temperature of a star is increased from 5000 Kelvin to 8000 Kelvin. What would happen to its wavelength and frequency? Okay, so ये बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन था। तो आपको अगर पता होगा फॉर्मूला वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का, जिसमें कि आपको पता है कि जो लैम्बडा है वो टी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और आपको अगर पता है कि टेम्परेचर से अगर लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो इसका अर्थ है कि आपका टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा आपका वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। सो द आंसर वेयर वेवलेंथ डिक्रीज इज देयर दैट विल बी द आंसर। ठीक है, और आपको ये चीज भी पता है कि वेवलेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके फ्रीक्वेंसी से, तो इस वजह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। जहां पे वेवलेंथ डिक्रीज होगी वहां पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। ठीक है, और जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगी वहां पे वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। सो दिस ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग दैट टर्म। ओके, सो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्लेशियर। तो अगर हम एक एक ऑप्शंस की बात करें तो पहली ऑप्शन आती है ड्रम्बलिन। ड्रम्बलिन आर द एलोंगेटेड टीयर ड्रॉप शेप्ड हिल्स ऑफ रॉक, सैंड, ग्रेवल दैट फॉर्म अंडर द मूविंग ग्लेशियर। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, आपको फिगर दिखाया गया है यहाँ पे, आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फिगर बनाया है। तो दिस इज ड्रम्बलिन, दिस इज ड्रम्बलिन। ओके, सो दिस इज द ड्रम्बलिन। ओके, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं,
जो ग्लेशियर के आपके डिपोशनल फीचर्स होते हैं, जहां पे आप ये चीज देख सकते हैं, दिस इज द ड्रम्बलिन। ओके, दिस इज ए ड्रम्बलिन। ओके, सो ये एक ग्लेशियर जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है। ठीक है, बात करें हम वार्प्स की, तो वार्प्स क्या होता है? वार्प्स इज ए, यहाँ पे हम वार्प्स की बात करते हैं तो वार्प्स में आप देख सकते हैं कि वार्प इज ए सिंपली डिफाइंड एज ए एनुअल सेडिमेंट लेयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लेशियर से बनाए हुए एक सेडिमेंट लेयर को हम वार्प्स बोलते हैं, इसको हम वार्प्स बोलते हैं। वार्प्स इस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो ये वार्प्स है। जबकि हम स्कर्स की बात करें तो स्कर्स जो होता है बिलीव टू फॉर्म व्हेन ए सेडिमेंट कैरिड बाय ग्लेशियर मेल्ट वाटर गेट्स डिपॉजिटेड इन सब ग्लेशियल टनल। ठीक है, सब ग्लेशियल टनल की बात करता है। अगर आप ग्लेशियर के माउंटेन्स की बात करें तो ग्लेशियर के माउंटेन्स तो आइस से ढके होते हैं, और साथ ही साथ आपके अगर हम ग्लेशियर के सब ग्लेशियर की बात करें तो उस आइस लेयर के बीनीथ में जो लेयर्स होते हैं उनको हम सब ग्लेशियर लेयर बोलते हैं। तो सब ग्लेशियर लेयर्स में अगर आपका सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है जबकि आपका ग्लेशियर मूव करता है और फिर वापस जाता है, तो उसको हम एस्कर्स बोलते हैं। तो ये तीन ऑप्शंस आर डेफिनेटली द फीचर्स दैट आर एसोसिएटेड विद द ग्लेशियर। बट जो ब्रेडेड रिवर है वो ट्रीम की बात करता है। ठीक है, वो ब्रेडेड रिवर्स, ब्रेडेड बार्स की बात करता है। ठीक है, तो ब्रेडेड बार्स जहां की हम बात करें तो ये हमारा एक रिवर फीचर है। ठीक है, एक रिवराइन फीचर है। तो हमारा ब्रेडेड रिवर एक रिवराइन फीचर होने की वजह से ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट एसोसिएटेड की बात की थी उसने। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव सम डाउट यू कैन आस्क, I will clarify your doubt. Have a nice day.